Okay, so in this unit, again I discuss about the application of vector space, then we discuss about the group, then field, then vector space, then subspace of a vector space, linearity, independent and dependent. These both still we have not discussed. Okay, then this is our unit. Then we already discussed about the application of vector spaces. Okay, then first definition prerequisite is group, then to define સર field. Yes, સર યશ પટેલ જે છે ને D2D વાળો yes. એનાથી એ લેક્ચર એટેન્ડ નહીં થાય, એને કોરોના થયો છે. Okay, no problem, no problem. Okay, no problem. Okay, then field, then we discussed our main portion of this unit is vector space. So these are the properties for this vector space. There are total 10 properties to satisfy by the given space. Then if it satisfies, then it is known as the vector space. The usual vector spaces are F is equal to R, F is equal to C. Then we already discussed about the RR is a vector space, then CR is a vector space. Also we have done about the P4 polynomial with degree 4. Okay, P4 is the polynomial with degree 4. Then these are the exercise for you. Okay, then we already discussed about the R plus. Okay, and note, there is a one note, and it is the we can say that n z q do not form a vector space over R. Means n z q जो है वो आपके vector space नहीं हो सकते हैं. Okay, because they fail any one properties from the our definition. Okay, now another example we already done about the x plus y is equal to x into y, and kx is equal to x raised to k, and xy belongs to R plus. Am I right? Okay, we already done it. Yes or no? Yes, sir. Okay, but I remember that there is a 9 property. All we discuss only 9 property. There is one property is missing, as I discussed at that time. Yes. Okay. So in this example, you can see that the first property is hold, then second property is hold, third property is also hold. Okay. All properties are hold, but there is no any discussion about one property, and I start our session with that property. Okay, these all properties are discussed in last lecture, but one property is remaining, and what is it? I discussed that, but due to time limit we cannot discuss more at that time. Okay, k1 x plus y. Okay, because x belongs to V, and K1 belongs to R plus. Okay, so x plus y, K1 into x plus y, ये प्रॉपर्टी हमने नहीं किया था. Am I right? विधि एंड धैर्य ये बाकी था ना. मैंने Yes. बोला था कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसा बोला था मैंने. बाकी सारी प्रॉपर्टी 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी. ये प्रॉपर्टी के लिए हमको डिस्कशन बाकी था. तो व्हाट वी कैन डू हियर? सो हियर यू कैन सी दैट k1, एंड व्हेनेवर यू हैव x plus y, so the given statement is if you have x plus y, then you put x into y. So I am putting here k1 into x into y. Done? Okay, now k1 into x into y. So if you have scalar multiplication k into x, that means x raised to k. So here we have xy raised to k1. Okay, then you have to write x raised to k1 into y raised to k1. Am I right or wrong? We can do this way. Yes, sir. Okay, so again reverse process, that means x raised to k1, you can write k1 into x, and here you also write that k1 into y. Again repeat. Okay, reverse direction. So if you have two vector in multiplication, then you can put as given statement k1x plus k1y. So k1 will be outside, so k1 x plus y again. Then that means this is not necessary. Yes, here we can prove here. Okay, k1x plus k1y. Am I right?
Okay, any confusion? Yes, sir. How many No, students sir. understand this? It is simple property. Good, very good. Okay, okay, done. Put your hands down. Okay, now we go for the our next concept, and it is subspace. Okay, so everybody look at here. Subspace of a vector space means vector space तो हमने देख लिया कि what do you mean by vector space, but the subspace of a vector space means extra एक subspace है, means vector space होने के बाद भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है. ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो let S be a non-empty set of a vector space V, then S is said to be a subspace. ओके, अब सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं. सबस्पेस ऑफ V मींस V का सबस्पेस उसको बनना है. वेक्टर स्पेस जो V हमने लिखा था कि V ऑफ F, दिस इज अवर ओरिजिनल सिंबल, मींस V फॉर वेक्टर स्पेस एंड F फॉर फील्ड. ओके, सो अगर ये टाइप का यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स सबस्पेस ऑफ V इफ as itself is a vector space means it is vector space, it must be vector space means वो vector space तो होना ही चाहिए. Okay, under this there is a mistake, same operation. Okay, same operation means जो भी आपने वेक्टर स्पेस में ऑपरेशन लिया है वही ऑपरेशन के साथ ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर स्पेस होना चाहिए. दैट मीन्स सेम ऑपरेशन, ओके, ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज इन, मीन्स अगर आपको एस को सबस्पेस दिखाना है तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेक्टर स्पेस अंडर द सम ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एनी कंफ्यूजन इन दिस डेफिनेशन? नो सर. No. वो हाँ, वो जो भी आगे हमने किया है ऑपरेशंस उसके साथ वो भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तब जाके यू कैन से दैट एस इज अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V. ओके, अब दिस इज द नोट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एवरी वेक्टर स्पेस हैज at least two subspace. Means if I am Jimit, so I have two subspaces. Okay, and I am a subspace, then sorry vector space, then I have two subspaces. Okay, so itself and this subspace 0 means मैं खुद and मेरा जो स्पेस है वो मेरा सबस्पेस हो जाएगा. मीन्स कोई भी आप वेक्टर स्पेस आपके पास है तो उसका सबस्पेसिस दो ही होंगे. कौन कौन से? इटसेल्फ V एंड सेकंड वन इज zero space, means जिसमें आइडेंटिटी है. द सबस्पेस 0 इज कॉल्ड द जीरो सबस्पेस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द जीरो वेक्टर, मीन्स उसमें आइडेंटिटी जीरो वेक्टर होना चाहिए. डन? क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दिस नोट? मीन्स अगर आपको कोई भी वेक्टर स्पेस बोल दिया है एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल R, तो what are the which of the following is the subspace of the vector space R? तो उसमें लिखा होगा एक तो 0 एंड दूसरा V और V इक्वल टू R. डन? क्लियर? तो आपको उस तरीके से आइडेंटिफाई करना है. देयर आर मेनी सबस्पेसिस बट दीज बोथ आर दी फॉर एवरी वेक्टर स्पेस. ओके, ये तो दो होंगे ही होंगे, उसके अलावा तो हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट बोला है ना कि उसके पास दो तो होंगे ही होंगे. Done? Any confusion? How many students understand this? Please raise your hand. Okay. क्या हुआ? 503? त्रुषा, निशिता, धैर्य. Okay. धैर्य, any problem? No sir, done. सौम्या, पृथ्वीराज सिंह. नो सर. ओके ओके, थैंक यू. ओके, डन. चलो डाउन, hands down. Okay, now next theorem. This is very important because we are using
this theorem to identify the subspaces. Okay, means इसी का हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में. So let V be a vector space and S be a non-empty subset, then S is a subspace of V. Okay, if and only if I double F means if and only if. Okay, for all x y belongs to S, अगर मैं S x एंड y दो एलिमेंट S में से लेता हूँ और उसका अगर एडिशन के साथ, दैट मीन्स x प्लस वाई, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोथ आर द यूजुअल ऑपरेशंस. ओके, सो हियर आई एम यूजिंग दैट. सो x y belongs to S, then x plus y should be in X. ओके, सो ये अगर सेटिस्फाई होता है तो वो दैट इज नंबर कंडीशन नंबर 1 है. एंड सेकंड कंडीशन, for any scalar alpha, because scalar multiplication is there, so for any scalar alpha and any x belongs to S, so alpha x also belongs to S. Okay, so there are two properties to identify this subspace. Okay, there are extra two. Okay, already we have 10 properties because it should be vector space. Okay, and then you have two another property, but there is no any needed to check the vector space in these examples. Okay, in subspaces. Any doubt in theorem? No, sir. Anybody? हमको ये दो प्रॉपर्टी ही चेक करना है. अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है देन वी डन. ओके, सो let's start with first example. Okay, the first example is, write down, given that set capital T is equal to x alpha x, alpha and x both belongs to R, check whether T is a subspace of V2R. V2R मीन्स वो वेक्टर स्पेस 2R, इसका सिंबल है. ओके, तो फील्ड हमारा R है एंड V2 मीन्स यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के थ्रू में है. ओके, तो V2R. ओके, तो इसको चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली दो कंडीशन जो है हमारी थियरम के अकॉर्डिंग x प्लस वाई बिलोंग्स टू S दिखाना पड़ेगा एंड x अल्फा x बिलोंग्स टू S. यहाँ पे आपको T बोला है तो वी गो थ्रू विथ T. ओके, डन. ओके, चलो तो फर्स्ट चेक करते हैं ये एग्जाम्पल के लिए. तो लुक एट हियर, दिस इज माय गिवन सेट. ओके, T इज इक्वल टू x अल्फा x बिलोंग्स टू R. तो हाउ वी कैन राइट दिस. ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे. ओके, तो यू कैन सी हियर, फर्स्ट we want to check whether this is a subspace or not, so we have to follow the definition of subspace. Okay, तो let पहले हमको डेफिनेशन के हिसाब से पहले क्या करना है, तो वी हैव टू डिफाइन टू एलिमेंट फ्रॉम S, बट वी हैव T, सो वी आर कंसिडरिंग टू वेक्टर फ्रॉम T. तो U इज इक्वल टू, अब वो वेक्टर कैसे लेना है, तो वो वेक्टर यहाँ पे देखो इस टाइप के वेक्टर आपको लेना है. तो x अल्फा x, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वही का वही ले लूंगा, x अल्फा x. ओके, एंड V ले रहा हूं मैं y अल्फा y. ओके, and both uv belongs to T. डन, मैंने ये ले लिया. नाउ सेकंड केस क्या है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन में क्या मुझे दिखाना है, u, यहाँ पे x प्लस वाई बिलोंग्स टू S, तो मुझे u प्लस v फाइंड करना पड़ेगा. देयरफॉर तो u प्लस v इक्वल टू x अल्फा x प्लस y अल्फा y. ओके, so if you add them then x plus y alpha x plus alpha y, so here you have x plus y as it is, alpha is common, x plus y. Okay, so here you can see that the given obtained vector is same form of the T. Okay, बिकॉज यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे x है हमारा जो गिवन है वो, यहाँ पे अल्फा आउटसाइड ही है एंड x प्लस वाई मीन्स x की जगह पे x प्लस वाई. दैट मीन्स यू कैन से दैट u प्लस v ऑल्सो बिलोंग्स टू T. एनी डाउट? नो सर. एनीबडी? No, sir. Okay, okay, second condition, what is our second condition? Second condition, for second condition you have to select one scalar alpha. Okay, means यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑलरेडी है तो हम कुछ नया नोटेशन देंगे. ओके, तो वी आर कंसिडरिंग दैट. सो ऑल्सो
second condition, also for any scalar बीटा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फील्ड में से ही मुझे लेना है, तो बीटा बिलोंग्स टू आर, वी हैव, ओके, अब मुझे किसको बिलोंग्स टू दिखाना है, तो वहां पे अल्फा एक्स था, तो यहां पे मेरे में क्या होगा, चलो बताओ मुझे क्या दिखाना बीटा पड़ेगा। एक्स। यस, बीटा एक्स मीन्स यहाँ पे हमने यू लिया है पहले से, तो बीटा यू दिखाना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ पे बीटा यू क्या लिया था मैंने, एक्स अल्फा एक्स। So now you know that the how beta will inside. So beta into x, am I right? Okay, and here you have beta alpha x. Okay, is it required form? Is it required form? जो हमको चाहिए वो मिल गया। हमको क्या चाहिए वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो गिवन फॉर्म है, मुझे बिलोंग्स टू टी दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे अल्फा होना ही चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा इसको सिंपल तरीके से लिख दूंगा, रीअरेंजमेंट, तो बीटा इंटू एक्स, अब अल्फा में पहले लिख लेता हूँ, बीटा एक्स में बाद में ले रहा हूँ। ओके, नाउ इट इज इन गिवन फॉर्म, एम आई राइट? यस सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है वही पीछे है अल्फा के साथ, दैट मीन्स देयरफॉर बीटा यू बिलोंग्स टू कैपिटल टी। सो फ्रॉम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मीन्स थियरम, ओके, जो हमने पहले डिस्कस किया वो सफिशिएंट कंडीशन T is subspace. Okay, any doubt in this example? The examples of subspace is very short. Okay, any doubt, student? No, sir. नो सर। No, How sir. many student don't understand this? How many student don't understand this? Yagnesh? Okay, good. He is also understand. Okay, good. Very good. Okay, all students are understand. Okay, then we go for second example. Okay, yes, it is very interesting. Example 5.5. S is equal to A B C D मैट्रिक्स दिया है, A plus B plus C plus D equal to 0. This is the condition. Okay, तो ये थोड़ा 2 क्रॉस 2 एनी मैट्रिक्स है, लेकिन उसके साथ ये कंडीशन डाल दिया कि आप चारों का एडिशन करें तो वो 0 होना चाहिए। इज सबस्पेस ऑफ V is equal to M2R. ओके, तो V is equal to M2R मीन्स M मीन्स मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स 2 2, R मीन्स फील्ड। ओके, तो M2 2R मीन्स जो A B C D जो लिया है यहाँ पे वो R में से हमको लेना है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको जस्टिफाई करना है। ओके, तो एस इज द सबस्पेस ऑफ वी, ये स्टेटमेंट आपको दिया है, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अगेन हमारे पास जो दो प्रॉपर्टी है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं एग्जांपल का स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो क्या दिया है हमको, सेट जो दिया है वो क्या है, एस के थ्रो में दिया है। ओके, तो मेरा एस है ए बी सी डी, ये थोड़ा केयरफुली एक बार लिखना है, ताकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, दिस इज माई गिवन सेट। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज माई फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या ले सकता हूं यहाँ पे, चलो बताओ, व्हाट इज माई फर्स्ट स्टेप। Value of ABCD. नो, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था। ओके, चलो हम डिवाइड कर देते हैं यही एग्जांपल को स्टेप वाइज, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, तो लुक एट हियर। सो इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग, मींस इफ यू वांट टू चेक सबस्पेस, देन दिस इज योर स्टेप नंबर 1। देन क्लियर, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। ओके, एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 3। गॉट इट? तो ये दीज आर दी स्टेप्स फॉर दिस एग्जाम्पल।
तो स्टेप नंबर 1 कि मुझे 2 वेक्टर लेना है टी में से। ओके, तो यहाँ पे हमारा एस है, तो मुझे 2 वेक्टर लेना है एस में से। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे मैं वेक्टर ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे, सो 2 वेक्टर मुझे कैसे लेना है, तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की नोटेशन आपको पता है कि मैं कैपिटल ए बी ही ले सकता हूँ, तो ए बी सी डी, एंड कैपिटल बी ले लेता हूँ ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2। ओके, अब इसके साथ मेरी कंडीशन भी आ जाएगी, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है, तो अगर मैं ये दोनों को A B बिलोंग्स टू S लेता हूँ, देयरफॉर अगर ये S में से है तो मुझे क्या कंडीशन लेना पड़ेगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 equal to 0, and second condition is A2 plus B2 plus C2 plus D2 is equal to 0। okay, तो this is step number 1 मेरा complete हो गया। now I start with A plus B, therefore A plus B equal to A1 B1 C1 D1 plus A C2 D2 इज इक्वल टू, अब ये तो इजी हो जाएगा, A1 प्लस A2 यू नो वेरी वेल, B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 एंड D1 प्लस D2। एम आई राइट? ओके ओके, अब मैं सीधा लिख सकता हूँ A प्लस बी बिलोंग्स टू S और नॉट। चलो बताओ, कैन आई राइट A प्लस बी बिलोंग्स टू S और नॉट? सर कंडीशन करवी पड़શે ને? यस यस, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे सीधा मैं नहीं बोल सकता, क्यों? बिकॉज मैंने ये फॉर्म लेके आ गया कि A1 जो है वो 4 एंट्री और 2 मैट्रिक्स है, इट इज ओके, बट व्हाट अबाउट माय कंडीशन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो इसके लिए हियर ऐसा करके लिखेंगे, हियर A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस D1 प्लस D2, ये क्या होना चाहिए मेरा, 0 होना चाहिए, तब जाके बोल सकते इट इज 0, बिकॉज A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 मीन्स नंबर 1 वाले साथ में करेंगे, A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2, सेकंड वाले सारे साथ में करेंगे। अब वी नो दैट वी हैव A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 0, A2 plus B2 plus C2 plus D again 0, so we have 0. Now we can say that therefore A plus B belongs to capital S. Any confusion, student? Up to here? No, Dear sir. student, okay, no. સર Okay, then what is my step number 3? સ્કેલર Scalar Yes, multiply. I have to multiply by scalar. So alpha into A, for that you have to let alpha belongs to R. Okay, alpha belongs to R लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो एक मिनट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फील्ड कौन सा है, यस R है, दैट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू R। तो अल्फा बिलोंग्स टू R मैंने ले लिया, एनी स्केलर B, any scalar। okay, then alpha into A, what is my alpha into A, so A1 B1 C1 D1। okay, अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वो एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इट मल्टीप्लाई विथ एनी रो और कॉलम और okay, it is multiplied to all entry, so alpha into A1, alpha into B1, alpha into C1 and alpha into D1। now what is my next task, I have to check the condition is satisfied or कंडीशन not। okay, but नहीं सॉरी, बट नहीं लिख सकते क्योंकि हो रहा है, तो बट नहीं लिख सकते। सो और therefore alpha A1 plus alpha B1 plus alpha C1 plus alpha D1।
here we can say here. Okay, so here is equal to, now I put alpha outside, so a1 plus b1 plus c1 plus d1, so alpha into 0, so it should be 0, therefore alpha a belongs to capital S again, means वो S में ही आ गया, so by definition यहाँ पे आप लिख सकते हो, so by theorem, okay, given as capital S is subspace. How many students understand this example, matrix wala? I think it is easy to earlier example. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, 509. What is your problem? You don't understand this? 509, are you there? Okay, Parth, Trusha, Soumya, Prithviraj, Parash. Is there any problem? No, sir, no problem. Okay, okay. Okay. Yes, Paras, you want to say something? No problem, sir. Okay, okay. Done. Then we go for next example. Okay, examine whether the set S is equal to x square, x belongs to R, is a subspace of V to R. Okay, तो अब इसमें क्या करेंगे? चलो try for this example. You can try. चलो पहले सबसे पहले ट्राई करो, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है. ओके, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3. We are doing example number 3, and what is our set? Set capital S is equal to x square where x belongs to R. Okay, now we have to examine this set is subspace or not. Okay, ट्राई करेंगे स्टूडेंट? यस और नो? Yes, sir. यस. जो करने वाले हैं वो तो यस ही बोलेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए मुझे पूछना पड़ेगा. चलो दर्शिल, आर यू डूइंग और नॉट? Yes, sir. ओके. Daria, you are doing. Yes, sir. Okay. Yagnesh, are you doing? sir. Yes, sir. Okay. 503. Yes, sir. यस बोलने में क्या जाता है नहीं? जय? I said yes, sir. No. It is not for you. Yes, sir. It is for all students. Don't worry. Nishita, are you doing? Yes, sir, doing. Okay. अगर आप कर रहे हो ना तो आपको एक जबरदस्त इसमें रिजल्ट मिलेगा, है ना? थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा. यू कैन सी, अगर आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो नया कुछ जानने को मिलेगा. ओके, चलो पहले तो 2 वेक्टर लेना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन, ओके, सो लेट कौन से लेंगे? यू ही ले लेता हूँ. यू कैन डिफाइन योर ओन वेक्टर. यस, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर. वी में ले रहा हूँ वाई स्क्वायर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर, एंड बोथ u and v belongs to us S. There is no any condition right now. Okay, and यहाँ पे you can say also x and y both belongs to R. That is my condition here कि x मुझे किस में से लेना है? R में से. So x y belongs to R. Clear? मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट.
Yes, sir. Yes, sir. Now u plus v, think about u plus v. So you have x square plus y square. Is it visible perfectly? Yes, sir. Visible. Okay. So here x plus y and x square plus y square. Okay? Because this is the vector addition. Okay, so x plus y, x square plus y square. Now what I can write down here, u plus v belongs to S or not belongs to S? Belongs to S also. Belongs to S. How many students say that it is belongs to S? Please raise your hand. How many students says that this is belongs to S? ओके ओह बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया कि दिस इज बिलोंग्स टू एस. ओके और कोई? 13 स्टूडेंट जो है आउट ऑफ 22 वो बोल रहा है कि इट इज बिलोंग्स टू यस 14 बिलोंग्स टू एस. ओके so you are wrong, you all are wrong. Why? I am explaining. Okay, you can not observe this at S. आपने S को ऑब्जर्व ही नहीं किया है कि वो क्या कहना चाहता है. तो यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ. अगर मैं इसको बिलोंग्स टू एस लिखूंगा, थोड़ा और दूसरा कलर ले लेते हैं. यस, इसको अगर मैं बिलोंग्स टू एस कब लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है उसका टोटल स्क्वायर होना चाहिए. नॉट लाइक दिस मीन्स अगर ये इसकी जगह पे इफ आई हैव एक्स प्लस वाई होता एंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता, देन यू कैन से दैट इट इज बिलोंग्स टू एस. एम आई राइट? नाउ गॉट योर माई पॉइंट? Yes. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. देर इज नो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. दैट्स वाई u प्लस v नॉट बिलोंग्स टू एस. नाउ क्लियर? 14 स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि इट इज बिलोंग्स टू एस. नाउ दिस इज कंप्लीटली ओके. Yes, sir. ओके therefore तो यहाँ पे सीधा क्या हो गया अब? therefore S is not subspace. subspace क्लियर कि नॉट होगा तो कब कैसे होगा? गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. ओके तो कोई भी एक कंडीशन मीन्स ये हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता है, या फिर ये नहीं हो सकता है दूसरा हो रहा है, लेकिन वी नीड ओनली वन कंडीशन विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एस. देन यू कैन से दैट इट इज नॉट इट इज नॉट अ सबस्पेस. डन? ओके देन also there is another way to define that it is not a subspace by counter example. Okay, so in fourth example we prove by counter example. Okay, यहाँ पे तो सीधा एक्सरसाइज है, लेकिन यस सीधा एक्सरसाइज है. ओके वी कंसिडरिंग फर्स्ट एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एंड इट इज एग्जाम्पल नंबर 4. ओके इट इज नॉट इन आवर स्लाइड बट वी आर डूइंग इट हाउ वी कैन prove by काउंटर एग्जाम्पल. कैसे काउंटर एग्जाम्पल से उसको डिसप्रूव कर सकते हैं, मीन्स नॉट अ सबस्पेस दिखा सकते हैं. तो एक मैं सेट ले रहा हूँ एक्स वाई जेड और उसके साथ कंडीशन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1. ओके एंड v इज इक्वल टू आर क्यूब. मीन्स जो मैंने वेक्टर स्पेस लिया है वो आर क्यूब है. मीन्स एक्स वाई जेड आर क्रॉस आर क्रॉस. आर क्यूब का मीनिंग क्या होता है? आर क्रॉस आर क्रॉस आर. ओके तो जो आर क्रॉस आर के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्स वाई जेड टाइप के. R2 होता है तो एक्स वाई होता है एंड अकेला आर होता है तो एक्स होता है. क्लियर? ओके दीज आर द डिफरेंस. ओके अब इसको मुझे वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो हाउ वी कैन
say that this is a vector subspace, sorry not a vector space, subspace or not a subspace. ओके तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल सीधा है, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड टाइप के मुझे लेना है, तो यहाँ पे लेट फर्स्ट स्टेप जो हम करते थे ऐसे ही करेंगे, u इज इक्वल टू x1 y1 z1 एंड v इज इक्वल टू मैं ले लूंगा x2 y2 एंड z2. ओके बोथ u एंड v बिलोंग्स टू r क्यूब. ओके दोनों किस में से मैंने लिया, r क्यूब में से. ओके अब अगर मैंने ये दोनों लिया है तो मेरे पास कंडीशन भी आ जाएगा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इट इज लेस और इक्वल टू 1 एंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1. ओके बोथ कंडीशन आई हैव. नाउ यू हैव अ काउंटर एग्जांपल, मींस आपको कोई ऐसा u एंड v सिलेक्ट करना है जिसमें ये कंडीशन ब्रेक हो जाए. तो कौन सा है आप u एंड v की चॉइस ले सकते हैं. सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको तो प्रूव करना बहुत इजी है. मीन्स लेस और लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ऐसा कोई भी आप x y z ले लो, x2 y2 z2 ले लो तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, चलो आप बता सकते हो, अगर आप नहीं बता सकते तो लेना ही है. एनी गैस, कोई भी एक एक्स वाई जेड दे दो, चलो कोई वैल्यू देना है, मीन्स यस विधि 1 1 1 1 1 1. ओके चलो 1 1 1 तो वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा उसमें तो. नहीं होगा ना सेटिस्फाई सर हाँ नहीं होगा, सॉरी. हाँ कोई भी आप लेंगे तो नहीं होगा, 1 कोई भी लेंगे तो नहीं होगा. अगर यहाँ पे मैं 1 0 0 भी ले लेता हूँ ना तो पर भी आप देखो u प्लस वी चेक करो आप, लेकिन u प्लस वी की तो बात ही नहीं आती है. यस यस उसकी बात सही था हाँ विधि, कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना ये कंडीशन को, तो u नहीं ले सकते ये. अंडरस्टैंड विधि? विधि आर यू अंडरस्टैंड? yes sir. ओके क्योंकि वो 1 + 1 + 1 लेस वो तो 3 हो जाएगा एंड इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1. तो हमको जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ऐसा कोई वेक्टर लेना है. फॉर एग्जांपल मैंने v लिया, देखो आप 1 0 0 तो हो गया ना वो सेटिस्फाई. क्लियर? तो ऐसा मुझे u दो, चलो चलो दो u, बहुत इजी है, इतना क्या सोचने का. 0 1 0. Yes, very good. Okay, 0 1 0. Now you think about u plus v. तो u plus v हम करेंगे तो 1 1 0. Yes or no? तो यहाँ पे आप देखो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 which is not less than equal to 1. Am I right? Clear? Yes sir. So S is not subspace. Yeah, so this is the another method to identify not subspace. जब not subspace है तभी हम ये कर सकते हैं. ओके सबस्पेस है तो उसमें सब कुछ वैलिड हो जाएगा, इसलिए ये मेथड आप नहीं कर सकते. काउंटर एग्जाम्पल वाला, इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल मेथड. लेकिन काउंटर एग्जाम्पल मेथड कब करेंगे, जब वो नॉट सबस्पेस है तब. और दूसरा ये भी मेथड की वो कंडीशन ब्रेक हो जाएगा तब भी आप बोल सकते हो नॉट अ सबस्पेस हमारी रेगुलर मेथड में. ओके सो यू कैन डू योर ओन वे. क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन नॉट अ सबस्पेस? No doubt sir. एनीबडी? एनीबडी? No sir. Okay, good Harish. Yes, Daria. Suresh, no. Daria, you raise your hand. Any doubt? No, sir, no doubt. Okay, 503, you also raise your hand. Any doubt? Okay, done. Okay, no problem. Okay, then we go for next. Okay, this is the exercise for you. These both the examples are exercise for you. Okay, here you can see that x square equal to y square, there is one condition, and s is equal to a n n, ab is equal to ba. Okay, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है वो कब करना है, कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब.
इतने एग्जाम्पल भी काफ़ी है। यहाँ पे मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल हमने कैसे लिए कि सबस्पेस है ऐसा लिया, दो एग्जाम्पल लिया नॉट अ सबस्पेस, ओके। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है देन यू कैन गो विद द एक्सरसाइज, ओके। एंड इफ़ यू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग देन ऑल्सो यू कैन गो विद द एक्सरसाइज, ओके। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो डोंट गो फॉर दैट एक्सरसाइज के लिए, ओके। नाउ वी गो फॉर आवर नेक्स्ट concept, linear combination. Okay, there is a mistake here, it is not this topic, it is linear combination, okay, linear combination. So linear combination is very simple concept and it is very useful concept in vector space, okay. So a vector v belongs to v is called the linear combination of vectors v1 v2 v3 and so on vn if it can be expressed as v is equal to alpha 1 v1 plus alpha v2 plus up to sun alpha n vn, where alpha 1 alpha 2 up to sun alpha n are scalars. मीन्स अगर कोई वेक्टर v को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो देन यू कैन से दैट द v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ all these vectors, that means v1 v2 v3 up to sun vn, okay. For example, अगर मेरे पास कोई पर्सन ए है और उसको मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन बी सी एंड डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट ए इज इक्वल टू अल्फा बी बीटा सी गामा डी, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो अगर ये ए इस तरीके से लिख पाता है मीन्स ए कैन रिप्रेजेंट एज ए इज इक्वल टू अल्फा बी प्लस बीटा सी प्लस गामा डी, देन यू कैन से दैट ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा बी सी एंड डी, क्लियर। एनी कंफ्यूजन इन दिस डेफिनेशन? Dear student, hello. Sir. Yes, sir. Yagnesh Dixit. No, Any sir. confusion? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Any other? मीन्स सिंपल, अगर आप हमारे नेम के साथ इसको रिलेट करें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आदिल है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है कि फॉर एग्जांपल करण, उसके बाद जूही, ओके, और कोई है फॉर एग्जांपल आशीष, ये तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू करण प्लस बीटा इंटू जूही प्लस गामा इंटू आशीष, और अगर ये आदिल इस तरीके से इक्वल टू में आता है तो उसको हम बोलेंगे कि आदिल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ करण जूही एंड आशीष। अब ये कॉम्बिनेशन में लिखना मीन्स अल्फा बीटा गामा मिलना चाहिए, अगर अल्फा बीटा गामा नहीं मिल रहा है देन इट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो अल्फा बीटा एंड गामा अगर आपको मिलता है देन यू कैन से दैट इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। डन। उसको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पे देखो, चलो एग्जाम्पल में चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉल्व किया एग्जाम्पल है ताकि आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो व्हाट इज दैट, कंसिडर दिस सबसेट एस। अब मैंने कोई सबसेट एस लिया है तो एस जो है मेरा वो मैंने कैसे लिया, ओके, यहाँ पे वन एंट्री मिसिंग है, 0 0 1 -1, ओके, 0 1 -1 2 0 1 एंड -3 2 5 ऑफ R3। मैंने एक R3 का सेट लिया, S इज इक्वल टू 0 1 -1 2 0 1 -3 2 5। सो देन द वेक्टर, अब मुझे किसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, इसको, दैट मीन्स 2 -2 3 को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। तो 2 -2 3, ओके, चलो मैं यहीं पे हमारी वर्कशीट में ही करता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, तो नाउ हियर यू कैन सी हियर I change my in, okay. So what is my given set, S is equal to, I have 0 1 -1 and 2 0 1 and
third one is -3 to 5. Okay, so I have this set of आर क्यूब. ओके, ये आर क्यूब का मैंने एक सेट लिया है. अब मुझे किसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, तो दिस इज माय स्मॉल v और कैपिटल V. यू कैन सिलेक्ट 2 - 2 3. ओके, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये 2 - 2 3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 -1 2 0 1 -3 2 5 है कि नहीं चेक करने के लिए आई हैव टू राइट इट इन दिस वे. 2 - 2 3 equal to alpha first vector 0 1 -1 plus beta 2 0 1 plus gamma -3 2 5. ओके, अगर मुझे अल्फा बीटा गामा इससे मिल जाता है then we can say that 2 - 2 3 is a linear combination of 0 1 -1 2 0 1 and -3 2 5. Okay, so how we can beta gamma, you know very well. First multiply alpha inside, so 0 alpha minus alpha plus 2 beta 0 beta plus -3 gamma 2 gamma 5 gamma. Now addition of the vector, you know very well, so 2 beta minus 3 gamma alpha plus 0 plus 2 gamma and minus alpha plus beta plus 5 gamma. Okay, यहाँ पे मेरे पास है 2 - 2 3. Okay, so I have three equation. Equation number 1, 2 beta minus 3 gamma equal to 2. That means by comparison we can find this alpha plus 2 gamma equal to -2, and third equation is minus alpha plus beta plus 5 gamma equal to 3. Okay, so now you can put alpha, the value of alpha -2 gamma, sorry, in gamma we have to convert in gamma. So the value of gamma in first, so what we can do here, so the gamma equal to 2 gamma equal to -2 minus alpha and gamma equal to -2 minus alpha by 2. Okay, so substitute this value in first equation. So what we get here, so we can put here, so 2 beta minus 3 minus 2 minus alpha divide by, so how we can do 0 1 0 1 minute, huh? 0 alpha 1 minus alpha 1, yes, okay, ओके. तो यहाँ पे हाँ थर्ड इक्वेशन में रख सकती है. ओके, हाँ वो कर देंगे, सीधा हो जाएगा, इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो यहाँ पे देखो आप 2 बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/2 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2. सो वी हैव 2 बीटा प्लस 3 अल्फा बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 2. सो 2 बीटा प्लस 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू -1. ओके, सो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू मिला, अब यहाँ पे बीटा निकालते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अल्फा बाई 2 इंटू 1/2. क्लियर? तो इट इज नथिंग बट -1/2 माइनस 3/4 अल्फा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा इन थर्ड इक्वेशन. So we have here minus alpha as it is. Okay, I change my ink again because I am dealing with third equation. So here we have minus alpha as it is plus beta. Beta means, okay, beta means minus है, तो minus,
Okay, so minus 1 by 2 minus 3 by 4 alpha. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Minus 2 minus alpha by 2 equal to 3. Okay, so here minus alpha minus 1 by 2 minus 3 by 4 alpha minus 5 into 10, 2 to cancel, that means minus 5 minus minus plus, sorry not plus, minus ही रहेगा. Okay, minus plus है. So here it will be minus 5 alpha by 2 equal to 3. Now collect alpha terms, that means minus 1 minus 3 by 4 minus 5 by 2 into alpha equal to constant right side ले जाएंगे तो 3 plus 1 by 2 plus 5. Okay, now ये क्या मिलेगा बताओ. चलो अल्फा का कोफिशिएंट क्या मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों साइड पे हमको चेक करना है. चलो जल्दी Minus बताओ. 17, माइनस 17 by 4. माइनस 17/4. हाँ चेक करना, वेरीफाइड. और यहाँ पे राइट साइड पे 17 by 2. 17/2. 17/2. Okay, here we have alpha is equal to 17/2 multiplied by minus 4 by 70. So 17 will be cancel out. Okay, 17 will be cancel out. 2 will be cancel out, and here we have minus 2. So therefore alpha is equal to minus 2. Clear? Any confusion? अब अल्फा हमारे पास है तो we can define beta also. Beta is equal to minus 1/2 minus 3/4 into minus 2. So it gives minus 1/2 minus minus plus 2 to cancel out 3/2 and it gives 1. Okay, so this is our beta, and we also define gamma. So here we have minus 2 minus minus plus 2 divided by 2, it gives 0. So my gamma will be 0, alpha will be minus 2 and beta is equal to 1. Means we have alpha, beta and gamma. Means हमारे पास alpha and beta and gamma की value है, मिल रहा है. Then we can say that V is a linear combination of these three vectors. Any doubt student? No, sir. अगर अल्फा बीटा, हाँ अल्फा बीटा गामा नॉट डिफाइन हो जाता, फॉर एग्जाम्पल अल्फा ही नॉट डिफाइन हो जाता, तो वी कैन नॉट से दैट इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन. क्लियर? ओके, कोई भी एक, अगर कोई एक हमको नॉट डिफाइंड मिल रहा है अल्फा बीटा गामा में से, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स. एनी डाउट स्टूडेंट? No, No, sir. sir. How many students understand this? Raise your hand. Very good. Okay. Very good. Okay, done. Okay, then we go for next. Okay, ये पूरा देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है. आप जो हमने प्रोसेस किया वही है. यस, अल्फा 1, इन्होंने अल्फा 1 बीटा सॉरी अल्फा 1, यस, जो V1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यहाँ पे लिया हुआ है. ओके, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की जगह पे हम क्या लेंगे, हमारे में क्या है अल्फा बीटा गामा. सो अल्फा जो हमारा था वो -2 था, बीटा 1 था एंड गामा 0 था. देन ओके, व्हाट इज द मेथड टू इवेल्युएट द लीनियर कॉम्बिनेशन? तो नंबर 1, स्टेप 1, express V as a linear combination of the given vectors V1, V2, V3 and Vn. जितने भी दिया है, अगर 3 दिया है तो 3, 2 दिया है तो 2, 4 दिया है तो 4. ओके, एंड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मीन्स उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे किया है, क्योंकि ये जब ज्यादा होंगे तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमको जाना पड़ेगा. यहाँ पे तो सिंपल 3 था और वी कैन फाइंड इजीली. सो यहाँ V इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू सन अल्फा एंड Vn हमने इसमें लिख दिया. देन स्टेप नंबर 2, चेक
Okay, if the system of equation is consistent आपको पता है, you have learned, okay, in semester 1 मैट्रिक्स अलजेब्रा आता था ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा 1, उसमें आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ाया गया था. If the system of equations is consistent, then V is a linear combination of V1, V2, V3 up to and Vn. And if it is inconsistent, then V is not a linear combination of V1, V2, V3 up to and Vn. Means इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको सारे अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n मिल जाते हैं, then it is the consistent system. and अगर वो नहीं मिलते, उसमें से कोई एक भी नहीं मिल रहा है, then it is the inconsistent system and it is related to consistent and inconsistent. तो स्टेप नंबर 1 हम करेंगे कि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे. then we want to check the given system is consistent or inconsistent. इससे भी हम एग्जांपल करेंगे. done? any confusion student? No. No, sir. No? Okay, so now it is 11:08. Okay, so I stop here.